Good morning, students. Welcome back. Today's topic is angular momentum. Angular momentum is similar to definition of torque. So let us define what is angular momentum. Uh, it is moment of linear momentum. Torque was moment of force, and it is moment of linear momentum. By moment I mean moment of force means R into F. This is called moment of force, and moment of linear momentum R into P. So this is moment of linear momentum, it is moment of force. Moment of force is called torque, and moment of linear momentum is called angular momentum. It will be denoted by L vector. So mathematically uh, torque was magnitude of force and multiplied by perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation. Here it will be angular momentum will be equal to इसकी जगह P आ जाएगा and this is R perpendicular. So we can say mathematically angular momentum is equal to linear momentum multiplied by perpendicular distance of line of action of linear momentum from the axis of rotation. ये हमारा एक पार्टिकल है and this is direction of linear momentum of the particle. एंड दिस डॉटेड लाइन इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. इन दोनों के बीच में एंगल थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर एंड पी वेक्टर. ये है डायरेक्शन, ये दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये डॉटेड लाइन दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. मतलब इस लाइन के ऊपर ये पी वेक्टर लाई कर रहा है. इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दिस इज पॉइंट ओ ओरिजिन. यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर लिए. जैसे हमने कल कहा था आपको कि वी हैव अ पार्टिकल, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. ओ पॉइंट पे आप अपने पेन को परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिए. तो दिस पेन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पेन को आप जेड एक्सिस कह सकते हो. और ये पार्टिकल जो है ये पेपर में घूम रहा है, तो पेपर इज एक्स बाई प्लेन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू एक्स बाई प्लेन. तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये OM is perpendicular distance of line of action of linear momentum from axis of rotation. Let this distance is R perpendicular. This R perpendicular distance is also called lever arm. This perpendicular distance is also called lever arm. So L is equal to magnitude of linear momentum multiplied by lever arm या perpendicular distance of line of action of linear momentum from the axis of rotation. So L is equal to P into RP in this triangle OMP. The OM say A. This is right angle triangle. This angle is 90 degree. This is base and this is hypotenuse. So theta is angle between base and hypotenuse. From here R perpendicular divided by R, magnitude of OA is small r. This is equal to sin theta. So from here R perpendicular is R sin theta. This is value of R perpendicular. And in vector form I can write L vector is equal to R vector cross P vector. Direction of L vector will be given by right hand thumb rule. Now this equation can also be rewritten like this. P के साथ sin थीटा को क्लब कर दिया मैंने, ये आ गया. एंड ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है.
इसको दो कंपोनेंट में सेपरेट कर दीजिए। दिस इज द रेडियल कंपोनेंट, जैसे हम कल बात कर रहे थे, इसमें फोर्स थी कल, तो फोर्स के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट थे। बस कुल मिला के इस P की जगह कल हमारे पास F वेक्टर था बस। तो दिस इज रेडियल कंपोनेंट, दिस इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और ये रेडियल कंपोनेंट ये तो पार्टिकल को इधर खींच रहा है। इट इज़ ओनली ट्रांसवर्स कंपोनेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ पार्टिकल। सो दिस कैन बी री रिटन B सबस्क्रिप्ट थीटा. So we can say L is equal to product of transverse component of linear momentum and R, magnitude of R. Now unit, इसका यूनिट जो है हम निकालते हैं, इन दोनों के यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी कैन से P होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी, तो इनटू R परपेंडिकुलर। तो L के यूनिट इनके यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका ग्राम है, इसका सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसका सेंटीमीटर, तो ये यूनिट आ जाएंगे ग्राम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सिमिलरली SI यूनिट kg, इसका मीटर सेकंड -1, इसका मीटर, सो इट विल बी kg मीटर स्क्वायर सेकंड -1। ये यूनिट H के प्लैंक्स कांस्टेंट के भी ऐसे ही होते हैं। H प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके यूनिट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी यही होता है। L के डायमेंशन, इसका डायमेंशन फॉर्मूला M, मास का, वेलोसिटी का L1 t -1, R परपेंडिकुलर का L, सो इट गिव्स यू M1 L² t -1। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कल जैसे हमने टॉर्क के निकाले थे बिल्कुल वैसे ही। सपोज वी हैव अ पार्टिकल, वो यहाँ पे है, उसका लीनियर मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन ये है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल आर x, y एंड z। तो अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसी बिंदु के पता हों तो हम उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। तो दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सिमिलरली इसके कंपोनेंट बनाए जाते हैं, P के 3 कंपोनेंट ये हो गए हमारे। L वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। L इटसेल्फ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये R की वैल्यू है दिस ब्रैकेट, और क्रॉस ये P की वैल्यू। यू नो इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा। सो देन इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, इधर आई कैप का कोफिशिएंट इसके इस तरफ जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसके साथ इक्वल कीजिए। तो Lx इज इक्वल टू बाई PZ माइनस ZPy। सिमिलरली इधर जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसको इक्वल कीजिए इधर जो जे कैप का कोफिशिएंट है, तो सिमिलरली आप के कैप का कोफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए। नाउ न्यूमेरिकल शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू h/2π। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री में यू माइट हैव सीन इट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन 2.2 into 10⁻⁶ meter per second. Radius of the orbit is also given 0.53 angstrom. एक angstrom mean 1 angstrom means 10⁻⁻10 meter. We know L is equal to mvr. L होता है हमारा P into R परपेंडिकुलर, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इस तरफ है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही इसकी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। सो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, यही P की। तो P ये यहाँ पे आप फिर से अगर आप पेन को परपेंडिकुलर खड़ा कर दें यहाँ पे, तो पेन जो है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, और उस एक्सिस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम इस पेन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इसके ऊपर, तो ये आएगा। सो R वेक्टर एंड P वेक्टर आर परपेंडिकुलर, so we can say this R perpendicular is equal to R। ये
आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो या इन अदर वर्ड यू कैन से दिस इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा, हेयर थीटा बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90। सो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू एम इलेक्ट्रॉन का इतना होता है जी -31 पावर, ये स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की, ये इसका रेडियस हो गया, ये इतना आ जाएगा कैलकुलेट करके। ये यूनिट जूल सेकेंड ये कैसे बना अभी बताते हैं हम आपको। h/2 दिस इज वैल्यू ऑफ h, और ये 2 ये पाई इसको कैलकुलेट किया, ये इतना आएगा। तो ये और ये ऑलमोस्ट बराबर, सो वी कैन से कि mv/r इज इक्वल टू h/2 आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो यूनिट एच के होते हैं वही इसके होते हैं। अब बात करते हैं कि जूल कैसे बन गया। यूनिट ऑफ एल होते हैं हमारे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। तो जो हमारा इसको मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई करता हूँ और सेकेंड से ही डिवाइड करता हूँ। तो ये कर दिया हमने केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -1 इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड से हमने डिवाइड सेकेंड से मल्टीप्लाई, ये सेकेंड ऊपर चला गया, ये बन गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड -2 बना इंटू सेकेंड। सो दिस इज जूल, दिस ब्रैकेट इज जूल, जूल सेकेंड। ना इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन की इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू dp/dt। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। यू कैन रीराइट इट d/dt, p is mv, m is constant, so I am taking it out of differentiation, this is v vector, ये हमारा एक्सेलरेशन। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। इसको भी लीनियर इक्वेशन की मोशन कहते हैं, इसको भी लीनियर मोशन की इक्वेशन कहते हैं, इसी इक्वेशन से ही आती है। तो बिल्कुल ऐसे ही नाउ आई एम गोइंग टू ड्राइव इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। We know linear motion is produced by force, ज़्यादा फोर्स लगाओगे ज़्यादा लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है वहाँ पे इसका काउंटर पार्ट टाउ, और लीनियर मोमेंटम की जगह आ जाता है एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसे लीनियर वेलोसिटी की जगह इसका आता है एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका काउंटर पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर एक्सेलरेशन इसका काउंटर पार्ट जो है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। देन फोर्स जो रोल प्ले करती है लीनियर मोशन में, दैट रोल इज प्लेड बाय टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर या रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। सो ये क्वांटिटीज़ है इस तरफ लीनियर मोशन वाली, और ये रोटेशनल मोशन में इनके काउंटर पार्ट्स। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। लीनियर मोशन में मास और रोटेशनल मोशन में इसका रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेट अस ड्राइव इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। वी नो L इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू T मीन्स d/dt दोनों तरफ अटैच कर दीजिए। सो इधर d/dt अटैच किया, ये बन गया, और इस तरफ d/dt। Then we know differentiation of x by with respect to z। डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, एक बार x को कांस्टेंट मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ y,
फिर दूसरी बार जो है आप y को कांस्टेंट मान लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x. सो दिस इज रूल टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट अगर हो दो क्वांटिटीज. सो इसमें लुक हेयर, आई हैव नॉट चेंज पोजिशन. x पहले था, y बाद में. इसमें भी x पहले है, y बाद में. इसमें x पहले है, y बाद में. तो डेरिवेटिव ऑफ r को कांस्टेंट मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t, फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ r, p को कांस्टेंट मान लिया. यू नो क्रॉस प्रोडक्ट में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हो तो हम ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे. जो वेक्टर पहले है उसको पहले ही लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखेंगे. सो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, वी कैन नॉट चेंज ऑर्डर ऑफ r वेक्टर एंड p वेक्टर. सो ये दिस इज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ. सो इसकी जगह फोर्स लिख दिया. दिस इज वेलोसिटी क्रॉस p. ये चीज़ हमारी बन गई टॉर्क, टाउ वेक्टर. And this is v vector cross p vector. We know a vector cross b vector is equal to ab sine of theta into unit vector, where theta is angle between a vector and b vector. So we have v vector cross p vector. It will be v p sine angle between b and b. It is 0. Sine 0 is 0, so it is 0. So we can write it vp into 0, so 0 आ गया. Here I told you जो v की डायरेक्शन होती है वो ही p वेक्टर की डायरेक्शन होती है. तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, वेलोसिटी एंड p वेक्टर. सो ये आ गया हमारा vp sin 0. सो ये टर्म 0 होगी. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. ये है इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन. दिस इज इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. सो वी कैन से लीनियर मोशन में फोर्स आता है, रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है. यहाँ लीनियर मोमेंटम होता है लीनियर मोशन में, और यहाँ एंगुलर मोमेंटम. सो वी कैन से टाउ इज काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स and angular momentum is counterpart of linear momentum. Now next is geometric meaning of L. सबसे पहले तो listen one thing कि area is a vector quantity. एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी डायरेक्शन जो है इट इज गिवन बाय आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने टेबल है, यू ओपन योर पेन और उस पेन को होल्ड कीजिए आप टेबल पे परपेंडिकुलरली विद टिप अपवर्ड लाइक दिस. ये टिप ऊपर की तरफ होनी चाहिए. तो ये जो हमारा पेन है ये एक प्रकार का एरो हेड हो गया, और ये टिप जो है ये एरो हेड. तो डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ टेबल विल बी टूवर्ड्स रूफ ऑफ योर हाउस. अगर आपने रूफ के एरिया की डायरेक्शन निकालनी है तो आप अपने पेन को रूफ के परपेंडिकुलरली होल्ड कीजिए और टिप नीचे की तरफ होनी चाहिए. तो वी कैन से जो हमारा रूफ है उसके एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी. ये टिप जो है इट शुड नॉट बी टूवर्ड द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया के अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए. तो वी हैव अ पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज ऑफ मास m. Initially it was at point C and r is its position vector. In time delta t, this particle moves from C to D point on the paper, and this is z axis which is perpendicular to the page and directed outward. ये हमारी जेड एक्सिस है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे हम. ये पार्टिकल पेज पे घूम रहा है जेड एक्सिस के चारों तरफ.
सो डेल्टा टी टाइम में ये सी से डी गया और ये इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गई पार्टिकल की। ये डी को ओ से ज्वाइन कीजिए तो ये जो एरिया है ट्राइंगल का, इट इज़ कॉल्ड एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास ये ब्रूम है, झाड़ू है या पोचा है या वाइपर है। ये पहले यहाँ था ऐसे, ये झाड़ू ऐसे पड़ा हुआ था। जैसे ही झाड़ू को या पोचे को आप यहाँ से जैसे इधर कर दिया तो ये एरिया सारा स्वीप हो गया। पहले हमारा जो झाड़ू था वो ओ सी के अलॉन्ग था और इससे रगड़ के आप झाड़ू को या पोछे को यहाँ से इधर ले गए तो अब ये झाड़ू की फाइनल पोजीशन है, दिस इज। तो ये है, ये शेडेड एरिया है, ये है एरिया स्वेप्ट आउट बाय द ब्रूम। तो लेकिन ब्रूम के बजाय ये कौन है यहाँ पे, इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर, जो कि पहले सी पे था पार्टिकल तो ये था पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर यहाँ पहुँच गया, ओ डी इज़ द पोजीशन वेक्टर। सो दिस इज़ द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। सो एरिया स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर आर वेक्टर, ये इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज आर, हाइट इज डेल्टा आर। सो दिस इज द एरिया स्वेप्ट आउट। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो डिवाइड करिए दोनों तरफ, डेल्टा टी से ये आ गया। फिर टेक लिमिट्स, तो लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और इधर भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये बन जाएगा हमारा डी ए वेक्टर बाई डी टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये बन जाएगा हमारा डी वी डी सॉरी इट विल बी डी आर बाई डी टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब कि बहुत ही कम समय लगा सी पॉइंट से डी पॉइंट जाने में। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये बहुत ही स्मॉल होगी और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम डी आर से डिनोट करेंगे और फिर ये बन जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहले ये थी एवरेज वेलोसिटी, इफ़ डेल्टा टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल तो इट विल बिकम योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गई और ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा एरियल वेलोसिटी बन जाएगा। यू सी लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये है एंगुलर वेलोसिटी। एरिया अपॉन टाइम, दिस इज एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। दिस इज द एरिया स्वेप्ट आउट इन 1 सेकेंड। डी टी सेकेंड में कितना एरिया स्वीप किया, डी ए, 1 सेकेंड में डी ए बाई डी टी। So this is the area swept out in 1 second. It is called aerial velocity. It is the linear displacement in 1 second. It is called linear velocity. It is angular displacement in 1 second. It is called angular velocity. So area swept out in 1 second, aerial velocity. फिर आप यहाँ पे m से डिवाइड करो और m से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ m से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 के साथ m लिख दिया, डिवाइड हो गया। ये बन गया हमारा लीनियर मोमेंटम। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर इज एंगुलर मोमेंटम। तो 1/2L, ये ब्रैकेट हमारा L एंगुलर मोमेंटम। इट कैन बी री रिटन, ये 2m को इधर ले आइए। सो L इज इक्वल टू 2m इंटू डी ए वेक्टर बाई डी टी। सो वी कैन से ज्योमेट्रिकली एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस the product of mass of particle with aerial velocity. This is geometrical meaning of angular momentum. Now next is Kepler's second law of planetary motion. Kepler gave 3 laws. One of the law is that aerial velocity of a planet around the sun is constant. So it is second law. I am going to prove it. दिस इज सन और ये इस तरफ प्लेनेट घूम रहा है।
दिस इज प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यहाँ पे ओरिजिन लीजिए तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सन। You know there is gravitational force between planet and sun। ये सन इस प्लेनेट को इस तरफ खींचेगा जिसको मैंने ये नीचे दिखा रखा है, बट दिस फोर्स विल also एक्ट ऑन दिस रेडियस, और ये फोर्स इसकी डायरेक्शन इधर होगी। सो एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर इज 180। So we know dl vector by dt is equal to tau. Tau is equal to r vector cross f vector. It can be written rf sin, एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच में 180 है, सो साइन 180 जीरो होता है, तो इट इज़ जीरो। सो डी एल बाई डी टी इज जीरो, इट मीन्स एल इज कॉन्स्टेंट। आई रिपीट, ये इधर जीरो है तो इधर भी जीरो ही आना चाहिए। इधर जीरो कब आएगा? व्हेन एल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इट इम्प्लाइज एल इज कांस्टेंट। एल अभी अभी हमने निकाला ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि एल इसके इक्वल होता है। सो 2m को इधर एल की जगह ये लिखा है रास्ते, 2m को इधर ले आइए डिनोमिनेटर में। सो दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को 2m से डिवाइड करेंगे, कुछ नया कांस्टेंट आ जाएगा। पहले 100 था, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 20 आ गया। सो दिस इज न्यू कांस्टेंट। So it shows that aerial velocity of a planet round the sun is constant. It is Kepler's second law of planetary motion. Now then, equilibrium of a rigid body. Rigid body like your building, chair, bus, etc. These are rigid bodies. So when they are in equilibrium, there are two conditions which must be fulfilled for equilibrium. First condition, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है सिस्टम के ऊपर, उनका वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। या ये कह लो कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, एक्सटर्नल फोर्सेस के सभी के एक्स कंपोनेंट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए जमा करने के बाद, और सम ऑफ बाई कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, और सम ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो होनी चाहिए। अगर एफ एक्सटर्नल की सम जीरो है तो ये ऑटोमेटिकली जीरो। सेकेंड कंडीशन है सभी प्रकार के टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, उनकी सम भी जीरो होनी चाहिए, और दिस इज इक्विवेलेंट टू के सारे टॉर्क के कंपोनेंट्स जीरो होने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, when a body is in equilibrium, p vector and l vector are constant। कैसे? we know, अगर if you recall, this is equation of linear motion, this is equation of rotational motion, ये होता है सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर ये जीरो है सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो p कांस्टेंट होगा। इधर जीरो है तो इस तरफ जीरो तब आएगा इफ p इज कांस्टेंट। सिमिलरली अगर टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क की सम जीरो है, तो दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड इफ l इज कांस्टेंट। सो वी कैन से कि या तो कह लो कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, या यू कैन से लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। ये वन मोर थिंग, ओनली फोर्स कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। इफ फोर्स इज जीरो, एम ए इज जीरो, और इट मीन्स जीरो अपॉन एम इज इक्वल टू ए, सो ए इज जीरो। Similarly that only torque can produce acceleration, ये हम बाद में ड्राइव करेंगे। वैसे मैंने बताया था रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क आता है और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इफ टॉर्क इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को हम तीन तरह से स्टेट कर सकते हैं। नंबर वन, एक्सटर्नल फोर्सेस की सम जीरो एंड एक्सटर्नल टॉर्क की सम जीरो। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका,
कि P कांस्टेंट और L कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरा तरीका एक्सक्यूज मी, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। ये सारी वन एंड द सेम थिंग। ना इक्विलिब्रियम में बी स्टैटिक और डायनेमिक। अगर बॉडी रेस्ट में है और सम ऑफ टॉर्क्स और सम ऑफ फोर्सेस 0 है, देन इट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। If body is moving with uniform linear velocity या uniform angular velocity, तो linear acceleration और angular acceleration भी 0। I told you कि linear acceleration and angular acceleration 0। ये कब कांस्टेंट होता है, या तो ये 0 कब होता है, या तो बॉडी रेस्ट में रहे, या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चले तो भी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ पे भी या तो बॉडी रेस्ट में है तो इट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन 0। अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रही है तो भी एक्सेलरेशन 0। तो अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इफ इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से अगर बॉडी चल रही है तो भी टॉर्क 0 है। There are three types of translational static equilibrium. Stable equilibrium. Equilibrium is said to be stable if potential energy of object is minimum. Best example is this is frying pan, कढ़ाई। ये एक बॉल रखी हुई है हमने, ये बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट पे रहेगी यहाँ पे। तो इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट बहुत ही कम है। इट हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इफ़ यू डिस्प्लेस दिस बॉल, यहाँ से अगर पकड़ के यहाँ ले जाएंगे और छोड़ देंगे तो ये अपने आप ही वापस इस तरफ आएगी। तो वी कैन से व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अ रेस्टोरिंग फोर्स विल कम इनटू प्ले, और वो रेस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को फिर से उसी तरफ लाना चाहेगी। अगर आपने बॉडी को यहाँ से डिस्प्लेस करना है, यू नीड टू डू वर्क, इधर ले जाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। सेकेंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ये हमने कढ़ाई को उल्टा करके रखा हुआ है किचन की शेल्फ के ऊपर, इसके ऊपर ये बॉल है, इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट काफ़ी ज़्यादा है ग्राउंड से या शेल्फ से, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। नाउ इफ दिस बॉडी इज गिवन स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी और वापस आने की कोई टेंडेंसी नहीं दिखाएगी। So potential energy will decrease when it is displaced from its position of unstable equilibrium. इसमें क्या होगा, when body is displaced, वो अपने आप अपनी ओरिजिनल या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करेगी, वापस उसी तरफ आ जाएगी। और यहाँ पे जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया जाएगा, ये यहाँ से नीचे चली जाएगी and it will not show any tendency to regain its state of unstable equilibrium. Neutral equilibrium, potential energy is constant. जैसे a sphere और ball on a horizontal table, अगर आप बॉल को डिस्प्लेस करोगे, सेंटर ऑफ मास की हाइट ना घटेगी ना बढ़ेगी, ये बॉल यहाँ से चली जाएगी आगे, एंड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, देन दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Equations of rotational motion, you know this is equation of these are equations of uniformly accelerated motion। इनके काउंटर पार्ट हैं, ये देखिए इधर, ये है फाइनल लीनियर वेलोसिटी, इसमें आएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये है इनिशियल लीनियर वेलोसिटी,
ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम वही रहेगा। ये एस इज इक्वल टू यू टी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। So these are three equations of rotational motion. Example: a constant torque acts on a wheel starting from rest. Wheel makes n rotations in t second. Find angular acceleration. See, very interesting difference. अगर हमारी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में चलती है, यहाँ से चली बॉडी, इट कंप्लीटेड वन राउंड, यहाँ से ऐसे चल गई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। एक चक्कर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, लेकिन इसमें ये बॉडी अगर बाई से एक्स आती है तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, और अगर बाई से इधर आ जाती है एक्स से बाई डैश तो 90, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री। यहाँ तक आ जाती है तो इट इज़ ये एक्स डैश पे पहुँचती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 270, और यहाँ आ जाती है तो इट इज़ 360। तो एक राउंड में दिस इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। And if you remember, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 360 क्या होगा, 2 पाई रेडियन, विच इज एस यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एक राउंड में, एक चक्कर में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी जीरो, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में इट विल बी 2 पाई रेडियन और 360 degree. If a body completes 2 rounds, तो angular displacement will be 720 degree और 4 pi radian. So अगर बॉडी ने n राउंड पूरे किए t सेकेंड में तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई इंटू एन। 3 राउंड होंगे तो एक राउंड में 2 पाई, 3 राउंड में 6 पाई रेडियन होंगे। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई n है और टाइम इसके लिए t लगा है, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये रही, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 दी हुई है 2 अल्फा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई n, सो इट गिव्स अस अल्फा। Next question is, blades of an aeroplane propeller are 2 meter long and rotate at a rate of 300 rpm. Calculate number 1 frequency, number 2 time period, third is angular velocity, fourth is linear velocity of a point 0.5 meter from the tip of the blade. सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन पूरे हुए। हमारे गिवन इज 300 आरपीएम। आरपीएम का मतलब हुआ 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और पर मिनट का मतलब हुआ 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब एक मिनट में नहीं जा, और एक मिनट मीन्स 360 सेकेंड, सो इट इज 60 सेकेंड। सो ये बन गया हमारा 5 revolutions per second, and you can write it 5 revolution per second means एक सेकेंड में 5 चक्कर, और we also call it 5 hertz. So frequency आ गई हमारी, it is 5 hertz,
टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है 1/5 सेकेंड माइनस 1, तो 1/5 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। वी नो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर बॉडी एक चक्कर पूरा कर देती है तो उस एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π रेडियन होगी, और उसके लिए जो टाइम लगा एक चक्कर के लिए दैट इज कैपिटल टी टाइम पीरियड। सो एंगुलर वेलोसिटी इज 2π अपॉन टी। सो 2π अपॉन टी, टी हमने निकाला है 1/5 सेकेंड, एक चक्कर का टाइम। सो इट इज़ 10π, ये 5 ऊपर चला गया, 10π रेडियन, या पाई इज 3.14, यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 31.43 रेडियन पर सेकेंड। देन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज योर ब्लेड प्रोपेलर का, तो इसकी लंबाई 2 मीटर है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये पॉइंट है टिप, दिस इज टिप, टिप से 0.5 मीटर इधर, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस p की इट इज़ 1.5 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो v इज r ओमेगा, r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ना के टिप से। तो r इज ये 1.5 एंड ओमेगा इज 31.43 रेडियन per second. So it gives you linear velocity meter per second. Now last question, calculate angular velocity of geostationary satellite. Geostationary satellite is a satellite which completes one round in 24 hours. तो एक राउंड लगाया इसने सैटेलाइट ने, दिस इज अर्थ, तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट ने एक चक्कर लगाया, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक चक्कर में 2π रेडियन, और टाइम एक चक्कर का कैपिटल टी। सो 2π रेडियन अपॉन टी, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट इज 24 आवर, सो इट इज़ पाई रेडियन पर आवर, ये आर ऊपर ले गया मैं, और ये 12 रहेगा। We also know pi radian is 180 degree. So this pi radian can be written 180 degree. So you divide it, it is 15 degree per hour. This is the angular speed. So that's all in the second part of this unit. Next part is moment of inertia. तो उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. So thank you for watching.